Okay, so good evening, guys. How are you all? How was your Diwali celebration? Okay, so today we are going to start a very new chapter, that is vector algebra, and also in perspective of JEE means this chapter weightage of this chapter is very high and it's a very big chapter also, है ना? इसके साथ वेक्टर के साथ थ्री डी ज्योमेट्री को मिला के क्वेश्चन आता है ना? तो पहले हम क्या करेंगे ना, वेक्टर अलजेब्रा को कंप्लीट करते हैं. Okay, then we'll go through 3D. So what we'll do in this week only, we have 2 days for enable plus classes. So what we'll do, we'll discuss the previous questions only of vector algebra. If we'll uh, get time in future also, we'll discuss all the theories of vector algebra, right? Okay, so let's move towards our questions also. And I hope my voice is clear to all, guys. Is my voice clear to all? Yeah, I hope it's good to start the class. Just a minute. Okay, what is happening here? See, all of you know vector addition, parallelogram law, ये सारी चीज तुम लोगों को पता है. डॉट प्रोडक्ट भी पता है. दिस इज a dot b is equal to mod of a into mod of b is into cos theta. Theta is the angle between the vectors, है ना? And these are the properties of dot product. Similarly, some other properties also are here are given. एंड ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ये होता है, जो डॉट प्रोडक्ट जो अंडरस्टैंडिंग होता है ज्योमेट्रिकली, वी कैन take a projection of a vector on another vector and we'll take the from there only we'll get the dot product. And these are some important results, and on these concepts only we're going to solve some questions. Okay, so these are few concepts I have taken, but there are a lot of concepts of vectors you'll be having. So let's start solving question one by one, and where the concepts will be required, we'll discuss those concepts and we'll go through. Right? Okay. Okay. So this is the first question for you. Right? This is the first question for you. Here in the question, it is asking, let A and B be the vectors along the diagonal of a parallelogram having the area 2 root 2. अच्छा, तो बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिनके दो डायगोनल दो वेक्टर है, वन इज ए अनदर वन इज बी. एंड वो पैरेललोग्राम की जो एरिया दिया है दैट इज 2 root 2. एंड इन दोनों डायगोनल के बीच में जो एंगल दिया है दैट इज एक्यूट एंगल, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन एज 1. And also it is given as that dot product of A and B is equal to cross product of A and B. And also C is given as this. Then angle between B and C. It is asking to find angle between B and C. Right? So how we can solve it? Okay, I'm giving you for this question 2 minutes. Okay, let's try to solve it. Your time starts now. Solve it. And when you're getting the answer, write in the chat box, everyone. Okay? Try to solve this question.
मुझे बी एंड सी के बीच में एंगल चाहिए। सी दिया है मुझे, अगर ए बी मिल गया ना तो आराम से मैं बी एंड सी को बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। ए की मैग्नीट्यूड मुझे दिया है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। एनीवन गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? किसी को मिला क्या? देखो, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्या दिया है मुझे? दो एक पैरेललोग्राम है तुम्हारे पास, ओके, एंड ये जो पैरेललोग्राम की दो डायगोनल्स हैं, दो वेक्टर हैं। सपोज दिस इज माय वेक्टर ए एंड दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर बी। ठीक है, तो मुझे पता है कि एरिया क्या होता है व्हेन द डायगोनल्स आर गिवन ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो बाय वेक्टर एरिया क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज 1/2 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी, है ना, ये होता है। अच्छा, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट 2√2। तो यहां से मुझे एक तो इंफॉर्मेशन मिल गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 4√2, है ना। यहां से एक अच्छा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है। और क्या दिया है मुझे? और कुछ दिया है क्या? देखो, यहाँ पे कुछ दिया है ना, ए डॉट मॉड ऑफ ए डॉट बी। देखो, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो ये होता क्या है एक्चुअली? यहां से अगर ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मिल रहा है ना। तो थीटा मुझे कितना मिला यहाँ से ना, π/4। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी मुझे क्या मिल रहा है ना, π/4 मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो मैं यहां से ये बोल सकता हूँ, जो ए डॉट बी होगा ना, दैट इज ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ π/4, है कि नहीं? सो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन एज 1, सो बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना हो जाएगा? ये ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी ये कितना मिला है मुझे? बोलो। हाँ, ए क्रॉस बी हो जाएगा ना, ए क्रॉस बी, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? इट इज ऑलरेडी वी गॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4√2, है ना। सो इफ आई सी, सो साइन ऑफ π/4 कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। तो बी कितना, ये 1 मुझे ऑलरेडी पता है, तो बी कितना हो जाएगा? 4√2। राइट हैंड साइड में 4√2 है, ये 1/√2 है, तो 8 हो जाएगा। सो बी का मैग्नीट्यूड मुझे यहां से मिल रहा है, दैट इज 8, राइट। तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता चल गया, बी का मैग्नीट्यूड पता चल गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी मुझे पता है ना। तो ये सारी चीज मुझे ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट कर चुका हूं। ठीक है, सो चलो, तो सी कितना दिया है मुझे? सी मुझे दिया है 2√2 इंटू ए क्रॉस बी माइनस 2b वेक्टर, है ना। तो ये चीज मुझे दिया है वो, है ना, सी दिया है मुझे। ठीक है, अच्छा, तो मुझे पूछा क्या है वो, यू नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी। अच्छा, ये मुझे सी दिया है, तो एंगल बी एंड सी के बीच में एंगल में कैसे फाइंड आउट करूं, वो इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं दोनों साइड में बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा? बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2√2, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो अगर मैं, जब मैं इसके साथ ए क्रॉस बी के साथ बी के साथ डॉट करूं तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास क्या?
माइनस बी डॉट सी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ये चीज होगा कि नहीं, ये समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, बी डॉट सी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है ना, -2 इंटू, तो यहां से बी का मैग्नीट्यूड एक और यहां से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं। तो सी कितना मिलेगा ना, सी का मैग्नीट्यूड जो है दैट टू इज, सी कितना मिला है मुझे, ये मिलेगा, है ना। तो यहां से मुझे जो कॉस थीटा मिलेगा, देखो तो कॉस थीटा मुझे क्या मिला, एंगल मुझे चाहिए ना बी एंड सी के बीच में, तो ये हो जाएगा -2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 8, सो -16 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी मुझे चाहिए एक्चुअली। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सी में फाइंड आउट कर दिया तो आराम से मैं एंगल बिटवीन बी एंड सी को फाइंड आउट कर सकता हूं, ये सो नो, हाँ कि ना। देखो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी को कैसे फाइंड आउट करें, सी कितना दिया है मुझे, ये मुझे सी दिया है, ये देखो ये मेरा सी है। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं लगा दूं तो मुझे ये फॉर्मूला पता है ना सबको, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, ये होता है। तो ये फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे लगा देंगे, ये जो सी दिया है ना मुझे, ठीक है, दोनों साइड में अगर मैं मॉड लगा दूं, मैग्नीट्यूड अगर मैं मॉड लगा दूं, तो मॉड लगाने से क्या मिलेगा मुझे, देखो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2√2 का स्क्वायर, ये तो मिलेगा एक, इंटू ए क्रॉस बी कितना दिया है 4√2, मुझे मिला था ना ए क्रॉस बी कितना मिला था उसका मैग्नीट्यूड 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 2 इंटू दिस, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 इंटू दिस कितना हो जाएगा 0, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर होता है क्या 4 इंटू 2 8 इंटू ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 प्लस 64 इंटू 4 है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 16√2, दिस इज योर करेक्ट आंसर, 16√2 मिलेगा, जो सी का मैग्नीट्यूड मिलेगा, है ना। तो सी का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा दैट इज 16√2, तो एंगल बिटवीन, है ना, हियर आई एम गेटिंग सी का मैग्नीट्यूड 16√2, तो एंगल बिटवीन बी एंड सी कितना हो जाएगा, तो cos थीटा कितना मिला, मतलब -16 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, सो -16 अपॉन 16√2 मिला है मुझे, तो 16 विल बी कैंसिल आउट, सो -1/√2, तो थीटा कितना हो जाएगा, देखो क्या दिया है आंसर में, क्या मिला है मुझे, थीटा कितना हो जाएगा, है ना, cos इनवर्स ऑफ 1 -1/√2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3π/4, आंसर क्या हो जाएगा 3π/4, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन, डन, क्लियर, कोई डाउट है इसमें। अच्छा क्वेश्चन था, जो भी 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्लास में भी और भी क्वेश्चन हम करेंगे, रिसेंट ईयर्स के 2023 का क्वेश्चन भी हम करेंगे। फिर वीकेंड क्लास तो सैटरडे में नहीं है तुम्हारा, फिर वीकेंड क्लास तो संडे में जो क्लास है उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो रिसेंट ईयर की क्वेश्चन है, ये 2022 23 21 तक अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो जो पैटर्न आता है ना क्वेश्चन मेंस में, वो समझ में आ गया तुम्हें, समझो, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, दिस क्वेश्चन, देयर इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट है इसमें, ये क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है क्या, बोलो।
नो डाउट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई एम गिविंग यू 2 minutes. Okay, let's first understand what is the question is asking. Okay, क्वेश्चन में ये दिया है एक वेक्टर है i प्लस जे प्लस टू के कैप, बी भी दूसरा एक वेक्टर दिया है दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, और सी भी एक वेक्टर दिया है. तीनों वेक्टर दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है. बी थ्री गिवन वेक्टर्स. लेट वी बी ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी. अच्छा, वो बोल रहा है कि बी एक वेक्टर है जहां पे जिस प्लेन में ए एंड बी भी लाई कर रहे हैं, है ना. दैट मीन्स बी ए बी तीनों प्रोजेक्ट क्या है, को प्लानर है, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं. एंड वी का प्रोजेक्शन ऑन सी, प्रोजेक्शन ऑफ v on c is given as 2 upon root 3, right? So if also it is given that b dot j कितना दिया है मुझे ना, 7 दिया है. So you need to find b dot v dot I plus k is equal to. Okay, so your time starts now. Let's start solving this question. When you are getting the answer, write in the chat box. क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, क्वेश्चन में दे रखा है बी V be a vector which is lying in the plane where A and B are lying. That means B, A and B, V, A and V are coplanar. So we can write linear combination. B को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, V is the linear combination of two vectors. B को मैं बोल सकता हूँ जो linear combination of two vectors में लिख सकता हूँ किसका, A and B का, है ना. तो B को मैं ऐसे लिख सकता हूँ V is equal to lambda into ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर. ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, है कि नहीं. अच्छा, सो वी वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, अगर हम लैम्ब्डा को ए वेक्टर के साथ ले लूं तो ए वेक्टर में क्या है, लैम्ब्डा इंटू ए वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, लैम्ब्डा इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर. सो लैम्ब्डा इंटू आई कैप के साथ क्या आएगा, 1 लैम्ब्डा प्लस बी वेक्टर, है ना. इसमें यहां से क्या आएगा 2, तो लैम्ब्डा प्लस 2 इंटू आई कैप, है ना, और लैम्ब्डा प्लस 2 म्यू, है ना, लैम्ब्डा प्लस 2 म्यू इंटू आई कैप, और प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे देखो लैम्ब्डा माइनस 3 म्यू इंटू जे कैप प्लस 2 लैम्ब्डा माइनस म्यू, 2 लैम्ब्डा प्लस म्यू
इंटू के, ये मिला मुझे क्या ना, वी वेक्टर। ठीक है, ये वी वेक्टर मिल चुका है मुझे। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वी ऑन, सॉरी ये दिया है देखो, बी डॉट जे कितना दिया है, वी वेक्टर डॉट जे इज इक्वल टू 7। तो जे के साथ अगर वी का डॉट प्रोडक्ट लूं, जे के साथ अगर वी का डॉट प्रोडक्ट लूं, है ना, तो कितना मिलेगा मुझे, तो लैम्बडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7 मिलेगा। ठीक है, लैम्बडा माइनस 3 म्यू कितना मिलेगा मुझे, मिल रहा है 7 मिल रहा है। और क्या दिया है ना, v डॉट, ये पूछा है क्या, पूछा क्या है ये पूछा है v डॉट आई प्लस के, है ना, v डॉट आई प्लस के पूछा है मुझे। अच्छा, और भी कुछ गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन c, है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन c, ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन c, दैट इज v वेक्टर डॉट c वेक्टर, प्रोजेक्शन c के ऊपर ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ c को डिवाइड करेंगे, विच इज गिवन एज 2/√3, राइट। सो b डॉट c कितना मिल रहा है मुझे, देखो ये मिला ना। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, मैं क्या मिला मुझे, v डॉट c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c इज गिवन एज 2/√3, ये गिवन है मुझे, राइट। और मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं, जो v के साथ अगर c को, ये मेरा c है, डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, डॉट प्रोडक्ट, तो लैम्बडा प्लस 2 म्यू, क्या हो जाएगा ये लैम्बडा प्लस 2 म्यू, ठीक है। और क्या मिलेगा, प्लस लैम्बडा माइनस 3 म्यू, लैम्बडा माइनस माइनस लैम्बडा 3 म्यू माइनस लैम्बडा माइनस 3 म्यू, और क्या, और 2 लैम्बडा प्लस म्यू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी फाइंड आउट करो, 1 √1 + 1 + 1 √3, विच इज गिवन एज 2 √3, है ना। तो यहां से देखो 2 लैम्बडा, ये लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो रहा है ना, और क्या बचा है, 2 लैम्बडा 2 म्यू प्लस 3 म्यू प्लस म्यू 6 म्यू, 6 म्यू कितना हो रहा है ये, 2 लैम्बडा प्लस 6 म्यू इज इक्वल टू 2, 2 लैम्बडा प्लस 6 म्यू इज इक्वल टू 2 मिला है मुझे, दिस इज सपोज इक्वेशन 2। अच्छा, तो यहाँ पे क्या मिला था मुझे, लैम्बडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7। तो अगर मैं इक्वेशन 1 के साथ दोनों साइड में 2 को मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू इक्वेशन 1 कर दो, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा इक्वेशन, दैट इज 2 लैम्बडा माइनस 6 म्यू इज इक्वल 14, 2 लैम्बडा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू 14, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को अभी 2 और 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे तो 4 लैम्बडा मिलेगा कितना मुझे, 16। सो लैम्बडा कितना मिला मुझे 4, तो म्यू क्या मिलेगा, म्यू कितना मिलेगा, अगर लैम्बडा 4 मिला तो म्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, सो 6 म्यू इज इक्वल -6, सो लैम्बडा माइनस म्यू -1, तो लैम्बडा मिला 4, म्यू मिला -1। तो वी में आराम से अभी वी को फाइंड आउट कर सकता हूं, तो वी कितना था, देखो वी कितना हो जाएगा मेरा, वी था मेरे पास लैम्बडा प्लस 2 म्यू, लैम्बडा की वैल्यू क्या, देखो मैं लिख देता हूँ और एक बार, लैम्बडा प्लस 2 म्यू आई कैप प्लस लैम्बडा माइनस 3 म्यू जे कैप प्लस 2 लैम्बडा प्लस म्यू के कैप। और मुझे क्या मिला है ना, लैम्बडा का वैल्यू मिले 4 एंड म्यू का वैल्यू मुझे -1 मिला है। इन दोनों को इसमें अगर हम यूज करेंगे तो मुझे वी का वी वेक्टर मिल जाएगा, तो वी वेक्टर कितना हो जाएगा, यूज करो, लैम्बडा की वैल्यू 4 है, सो 4 प्लस 2 इंटू -1, तो 4 - 2, 2 आई कैप प्लस लैम्बडा 4 - 3 जे कैप प्लस 4
ये कितना हो जाएगा 8 + 8 - 7 k कैप। तो बी क्या मिला मुझे ना, वी मुझे मिल गया दैट इज 2 i कैप + 7, 2 i कैप + j कैप - 7 k कैप, है ना? ऐसा मिल रहा है क्या, λ4 और ये माइनस है, ये 7 k j कैप हो रहा है ना, हाँ 2 i कैप + 7 j कैप + 7 k कैप, ये v का वेक्टर मिला मुझे। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड v डॉट i प्लस के, ये फाइंड आउट करना है मुझे, v डॉट i प्लस के। सो 2i कैप + 7 j कैप + 7 k कैप के साथ किसको लेना है ना, i प्लस k को लेना है। तो i के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा ना 2, और j के साथ k के साथ करूंगा तो 7, तो 9 हो गया। तो दिस इज योर आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, है ना? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर एवरीवन, डन? एनीवन हैविंग इन डाउट, इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलो। डू यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोजेक्शन इंपोर्टेंट है, याद रखो। प्रोजेक्शन इंपोर्टेंट, प्रोजेक्शन क्या होता है, एक वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर का, अगर हम जैसे यहाँ पे मैं वी वेक्टर का प्रोजेक्शन सी वेक्टर के ऊपर ले रहा हूँ, तो ये हो रहा है कितना ना, वी डॉट सी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, जिसके ऊपर तुम प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है तुम्हें, राइट, है ना? और लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर तीन वेक्टर कोप्लानर है तो एक एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक है? ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे, राइट? क्लियर एवरीवन, डन? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। ये भी 2022 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक वेक्टर है दैट इज a1 i कैप + a2 j कैप + a3 k कैप, ओके, so be a vector which makes equal angle with the coordinate axis ox oy oz, that means ये बोल रहा है कि तीनों एक्सिस के साथ जो ए वेक्टर है वो इक्वल इंक्लाइंड है, दैट मीन्स जो ए वेक्टर होगा वो बीच में से ही निकलेगा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ वो जो एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ वही एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है। ऑल्सो लेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वेक्टर 3i कैप + 4j कैप बी 7। अच्छा, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन 3i कैप + बी 4j कैप के साथ दिया है मुझे, दैट इज द 7। लेट बी बी ए वेक्टर ऑब्टेन बाय रोटेटिंग द वेक्टर ए विथ 90 डिग्री। अच्छा, तो ए वेक्टर को तुम 90 डिग्री रोटेट करोगे तो तुम्हें बी वेक्टर मिल रहा है, डोंट, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इफ ए एंड बी एंड एक्स एक्सिस आर कोप्लानर, अच्छा ये बोल रहा है कि ए बी एंड एक्स एक्सिस तीनों कोप्लानर है, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन दिस वेक्टर, ये पूछ रहा है। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से करो, एंड फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो आई एम गिविंग यू 2 minutes, so it will take, let's try it, ट्राई करो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करो।
ओके, सो एनीवन गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? किसी को मिला क्या? देखो, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? ओके, सो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये दिया क्या है, यहां से यहां तक देखो, A is a vector, B, A is a vector which makes equal angle with coordinate axis OX, OY, OZ. अच्छा, तो A वेक्टर को मैं ऐसे मान सकता हूं, तो A वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि ये तीनों एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लाइंड है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये क्या है, और क्या दिया है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर ना, 3i प्लस 4j कैप के साथ दिया है मुझे, दैट इज 7। सो ए वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 विच इज गिवन एज 7। तो इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मुझे मिलेगा लैम्बडा इंटू कितना मिलेगा, लैम्बडा इंटू 3 + 4, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये मिलेगा। तो नीचे क्या हो रहा है ना, 5 और 7, तो दोनों साइड से 7 7 को मैं न्यूमरेटर से कैंसिल करूंगा, तो मुझे क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू 5 मिला। इफ यू आर गेटिंग लैम्बडा इज इक्वल टू 5, देन द सिंपल थिंग इज, अगर लैम्बडा 5 है तो ए वेक्टर कितना हो गया ना, ए वेक्टर इज एक्चुअली 5, कितना हो जाएगा, 5 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, ऑन रूट ऑफ 5 का ऑन रूट ऑफ 5, 5√3 हो जाएगा ना, सो 5√3 हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5, जस्ट मिनट, 5√3। ओके, डन। तो ये हो चुका है, तो देखो थोड़ा मैं काम था, सॉरी। अच्छा, तो ये क्या हो गया,
तो तुम्हें जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज 5√3। अच्छा, और क्या दिया है मुझे? वो मुझे दिया है बी वी ए वेक्टर ऑब्टेन बाय रोटेटिंग द वेक्टर ए विथ 90 डिग्री। अच्छा, ए वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट करने के बाद बी वेक्टर तुम्हें मिल रहा है, एंड ए बी एक्स आर कोप्लानर। अच्छा, ये दिया है मुझे गिवन ए बी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस आर कोप्लानर। अगर ये कोप्लानर है तो मैं बोल सकता हूं क्या? सो बी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए वेक्टर प्लस बीटा इंटू एक्स एक्सिस, दैट इज आई कैप, है ना। तो बी वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं ये वेक्टर के साथ डॉट ले लूं, डॉट विथ टेक डॉट विथ डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? So A dot B, because when A is rotating 90 degree, you are getting B vector. That means angle between them two vector is it 90 degree. So when the angle between two vector is 90 degree, their dot product will be 0. So 0 is equal to, ये कितना हो जाएगा? 0 is equal to alpha into magnitude of A square plus beta into क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे मिला है ना, ए डॉट बी के साथ ले रहा हूँ, ये ए को मल्टीप्लाई करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, एंड ये ए का मैग्नीट्यूड है 5√3 है, तो 5 है ना, 5 इंटू आई हो जाएगा। आई के साथ अगर मैं 5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको? 5 आई के आपको यूज कर, आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो 5 में ही मिलेगा। तो ये कितना हो रहा है ना, 0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है ना 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हम्म कितना हो रहा है ना, 25 इंटू 3 प्लस अल्फा 5 बीटा, ये हो रहा है, इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना। तो मैं इसको अच्छे से और भी लिख सकता हूं, तो मुझे बीटा कितना मिलेगा? यहां से मुझे बीटा मिल रहा है सिंप्लीफाई करके -15 अल्फा, है ना। इक्वेशन 1 दे रहा हूं मैं उसको, -15 बीटा मिल रहा है। अच्छा, और एक केस हम लेते हैं, जो नाउ बी को मैं कैसे लिख सकता हूं ना, बी विल बी, बी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा? बी वेक्टर इज एक्चुअली, अगर तुम्हें बीटा मिल चुका है तो उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू ए वेक्टर माइनस बीटा कितना मिला है ना, 15 इंटू अल्फा। देखो बीटा कितना मिला है, -15 इंटू अल्फा। सो माइनस इसमें पुट करो ना, ये चीज को यहाँ पे पुट करो, तो बी वेक्टर कितना हो गया? अल्फा इंटू ए वेक्टर प्लस -15 अल्फा आई कैप, है ना, -15 अल्फा आई कैप, ये हो जाएगा बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को और भी अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू ए वेक्टर क्या मिला था मुझे ना, 5 इंटू आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, -15 आई कैप, अल्फा को मैं कॉमन ले लिया, ठीक है, ये हो गया, है ना। सो बी वेक्टर मुझे सिंप्लीफाई करने के बाद कितना मिला है ना, 5 अल्फा इंटू, इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, 5 अल्फा इंटू -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा बी वेक्टर। अच्छा, बी वेक्टर तुम्हें ये मिल रहा है। अगर बी वेक्टर तुम्हें ये मिल रहा है तो रोटेशन कितना दिया है मुझे? देखो रोटेशन दिया है मुझे, सिंस रोटेशन इज गिवन, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो ए वेक्टर इज इक्वल बी वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3, 5√3 है ना, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मिल रहा है यहाँ से ना, 5 इंटू मॉड ऑफ अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, √6, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू मिलेगा ना, दैट इज +or-1/√2। अच्छा, अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है ना, +or-1/√2, तो बी कितना हो जाएगा, है ना। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर अल्फा तुम्हें मिल चुका है तो आराम से तुम सब्स्टिट्यूट करके बोल सकते हो, तो +or-5/√2 इंटू -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा, है ना। तो बी वेक्टर अगर ये हो रहा है, सपोज जो वेक्टर मुझे दिया है ना, ये वेक्टर देखो क्वेश्चन में, द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन दिस, तो ये वेक्टर को मैं डी मान लेता हूँ, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। सपोज लेट आई एम टेकिंग डी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप लिया है। तो वी वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर का प्रोजेक्शन डी वेक्टर के ऊपर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो
बी वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर डी के ऊपर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन डी वेक्टर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 5/√2 इंटू कितना था, डॉट प्रोडक्ट ले लेना ना, बी डॉट दिस, इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ले लो जो भी आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 3 -6, ये हो जाएगा -6 + 4, है ना, -6 + 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डी दैट इज 5, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे कितना मिला, प्लस और माइनस √2 मिल रहा है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, प्लस और माइनस √2 मिल रहा है तुम्हारा आंसर, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन, डन, कोई डाउट है इसमें? अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में देखो एक वेक्टर, देखो ये पासेज जो दिया है ना, ये यहां से यहां तक तो इतना में ही खत्म हो गया, है ना, और जो दिया है ये प्रोजेक्शन ऑफ ए दिया था और वेक्टर भी दिया था, इट इज ऑलरेडी 7, वो इंफॉर्मेशन को यूज किया, फिर वी वेक्टर ऑब्टेन बाय रोटेटिंग द वेक्टर ए विथ 90 डिग्री उसको भी यूज किया, फिर ये को प्लानर है, को प्लानर मींस इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा, तो देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन डी, इसको मैं डी मान लिया, है ना, ये वेक्टर को मैं डी मान लिया, तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर बी वेक्टर जैसे ही मुझे मिल गया, बी वेक्टर यहां से मुझे मिल गया, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन डी वेक्टर के ऊपर ले लिया, है ना, ये हो गया। क्लियर एवरीवन, डन, क्लियर। अच्छा, तो अगर ये चीज समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो बी वेक्टर दिया है मुझे, बी वेक्टर इफ ए इज ए वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस, ए डॉट बी प्लस 21 दिया है मुझे 0, है ना, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट निकालो तुम्हें ए डॉट, डॉट प्रोडक्ट विथ बी ले लो, है ना, डॉट प्रोडक्ट विथ बी ले लो इसको, है ना, सो ए डॉट ए क्रॉस बी डॉट बी, और राइट हैंड लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ऑलरेडी मुझे गिवन है, दैट इज 13 आई कैप डॉट, ये, अच्छा यहां से ये इसका डॉट प्रोडक्ट ये 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट बी कितना होता है, 0 होता है, एंड ये क्या हो जाएगा ना, 13 -1 -4 लैम्बडा, तो यहां से मुझे 4 लैम्बडा कितना मिला, 12, तो लैम्बडा कितना हो गया ना, 3, हियर आई एम गेटिंग लैम्बडा इज इक्वल टू 3, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट ले चुके हैं गिवन वेक्टर, ये जो कंडीशन ये जो दिया था ना उसके डॉट प्रोडक्ट लिया हूं मैं, ठीक है, उसके किसके साथ, बी के साथ, है ना। सिमिलरली अभी क्या करेंगे ना, टेक क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, ठीक है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ ले लेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट करते हैं, आई जे के, तो जो भी मिला है तुम्हें, देखो यहां से क्या मिला है मुझे, 13 -1 -4, और नीचे क्या है, बी वेक्टर का 1 1 लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू 3, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करो, ए वेक्टर फाइंड आउट करो, इसको सॉल्व करोगे तो ए वेक्टर जो तुम्हें मिलेगा ना, दैट विल बी, यहां से मुझे ए वेक्टर मिलेगा, दिस विल बी -2 आई कैप +2 जे कैप -7 के कैप, ये मिलेगा तुम्हें ए वेक्टर, है ना, तो ए वेक्टर मिला है मुझे, ए वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर मुझे ऑलरेडी गिवन है, बी वेक्टर कितना है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्बडा के कैप, दैट इज लैम्बडा 3 के कैप, ये बी वेक्टर है। अभी गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, पहले तो एक काम करो, पहले इसको निकालो ना, बी माइनस ए डॉट के माइनस
जे, है ना, बी माइनस ए डॉट के माइनस जे को फाइंड आउट करो। ठीक है, ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हें मिलेगा यहां से 11 मिलेगा। और देन देखो, और क्या करो ना, जे माइनस आई माइनस के डॉट बी प्लस ए, आई माइनस ए डॉट कितना दिया, बी प्लस ए। इसको सिंप्लीफाई करके बी वेक्टर ए वेक्टर ऑलरेडी तुम्हें पता है, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हें 3 मिलेगा, तो इन दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट इज 14। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14, राइट। सिंप्लीफाई तुम्हें कैलकुलेशन तुम्हें करना है ना। ये भी 2022 का क्वेश्चन है ना। आंसर क्या मिला है मुझे ना, 14। ठीक है, एंड दिस इज फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन, टेक दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ऑल।